सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका सर। Okay, thank you. Am I audible now? यस सर। Okay, thank you very much. So I'm welcoming you all to this session, interactive session related to history of Arabic literature during the Abbasid times. So we'll be having a very quick recap of things in the shape of slides. I'll be just showing you some slides before taking up the actual questions. मैं एक रिकैप अभी दूंगा अब्बासी दौर के बारे में जो चीज़ें हैं, अब्बासी दौर का जो जोग्राफिया था, उसकी जो तारीख है, जो सियासी सिचुएशन है रही है, फिर जो अदबी मंजरनामा रहा है, तो उसके बारे में अभी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम कुछ एक रिकैप के लिए हम चीज़ें हम दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये जो स्लाइड है ये नज़र आ रहा है? Yes, sir. स्लाइड नज़र आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay, that's good. So there's something like the geographical as well as the historical landscape before going into some further details in the backdrop of the background of the questions that will be taken in this session. So as we all know that the time frame between 750 to 1258, the first phase, coupled with the second phase, that is 1261 up to 1517, this is the second phase. These two phases together, these two phases make up the exact time frame of the Abbasid empire or the Abbasid rule. So this again would be something maybe something new for the common students, for the common readers, because what we usually know or propose is that Abbasid period is epicentered in Baghdad, and it represents the time frame of 750 to 15 to 1258. So no, this is something related to Kufa, Samarra, Baghdad, etc. We are starting from Kufa, then moving to Samarra, uh, among the another city which is now in present day in the Syria, that is Raqqa. Raqqa was the city of Raqqa was the capital of Harun Rashid, the Caliph Harun Rashid. So then, of course, Baghdad. So usually we know that the capital of the Abbasids was Baghdad. So this is wrong. आमतौर पर समझा जाता है कि यहाँ पर दो गलत फहमियाँ हैं जिनको दूर कर लेना चाहिए। एक तो ये है कि अब्बासी दौर के दो मरहले रहे हैं। हम आमतौर पर पहले मरहले से वाकिफ हैं, होते हैं। आमतौर पर जब कहा जाता है कि अब्बासी दौर, तो हम समझते हैं कि ये हुक्मरानी का वो हिस्सा है जो कि बगदाद से मुतल्लिक था और जो सन 750 से लेकर के 1258 तक का अरसा है। ये दुरुस्त नहीं है। ये पहला हिस्सा है। इस पहले हिस्से में भी बगदाद सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नहीं था। बगदाद वाज नॉट द सोल कैपिटल। बिफोर दैट कूफा वाज द कैपिटल, and then of course you are having Raqqa, then Samarra, then Baghdad. Then you have the second phase. उसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज 1261 से लेकर के 1517 तक का आता है और यहाँ दारुल हुकूमत काहिरा था। ये कैसे? ये असल में with the carnage of the Mongols in Baghdad, which is usually known as the devastation of Baghdad, in 1258, when Baghdad was devastated,
and the Abbasid dynasty came to an end. So this is related to the first phase. But what actually happened is that in 1261 up to 1517, the Mamluks of Egypt had installed the Caliph, the Baghdadi Caliph, as the symbolic ruler, as the symbolic ruler. So even although it was symbolic, that is 1261 to 1517, it was symbolic, but here the actual ruler happened to be the Mamluks. But of course, the symbolic leader, we can say the spiritual leader, symbolic leader, was the Abbasid Caliph. It all starts with the last days of the Umayyads. Umayyads had ruled between 661 to 750, in which you have the episode of Karbala taking place in 680, in which Imam Hussein was martyred, as it is well known. This has something to do, in principle, with the transformation in politics, transformation of the political authority from the Umayyads to the Abbasids. So the Karbala episode had played a significant role in this respect. The Abbasids were primarily supported by the Persian generals. We have the examples of Abu Muslim Khurasani. Rather, he's thought to be the real founder of the Abbasid empire, Abbasid rule. अबुल अब्बास सफ़ाह के अब्बासियों को जो इक़्तिदार मिला, ये बुनियादी तौर पर जो फ़ारसी पर्शियन जो जनरल्स थे, फ़ौजी अफ़सरान थे, उनकी बदौलत उनको अपने अपने रूल को, अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश करने में बड़ी मदद मिली। बुनियादी तौर पर ये उनके मरहून मिन्नत हैं। तो उनमें अबू मुस्लिम खुरासानी का नाम आता है सबसे पहले, 755 में इनका इंतकाल हुआ। फिर क़हतबा बिन शबीब अत्ताई का नाम आता है, ताहिर बिन हुसैन का नाम आता है। ताहिर बिन हुसैन और उसके बाद फिर इनके मुतअद्दिद बेटे, यानी उनकी नस्ल में फिर जो हैं गवर्नरेट चली, ये वाली रहे खुरासान के। ताहिर बिन हुसैन ने अब्बासी हुक्मरानों की बड़ी खिदमत अंजाम दी थी, और इनके फिर एवज़ में ताहिर बिन हुसैन को खुरासान का गवर्नर बनाया गया था, और फिर आगे वहाँ की गवर्नरशिप उन्हीं के उसमें चली, उन्हीं के ख़ानदान में चली। और बाद में फिर ये सिलसिला जारी रहा, तो फिर ये जो है ताहिराइट्स की हुकूमत खुद खुरासान में कायम हुई। ये हुकूमत बहुत लंबी नहीं थी, लगभग 52-53 साल की तक ये रही। लेकिन ये एक अरसा था, और इसको अब्बासी दौर में जो पर्शियन जनरल्स थे, फौजी अफसरान थे, और उनका जो रसूख था, और बाद में जिनको गवर्नर बनाया गया, तो इस हवाले से देखना चाहिए। Then there was the consolidation of political power. When the political power was consolidated, then you'll be having a number of the political leaders, the caliphs, who are known as the Abbasid caliphs. The society and culture, we'll be talking about the society and culture. We'll be showing the slides regarding the society and culture. So, Harun Rashid and Charlemagne episode, this is actually related to something like which was never seen before. हारून रशीद और शार्लमान के बीच में जो मुरासलतें रहीं, जो सियासी ताल्लुकात रहे, ये भी एक अहम कड़ी है अब्बासी दौर को समझने के सिलसिले में। शार्लमान ये फ्रांस के हुक्मरान थे, और उन्होंने 774 से लेकर के 814 तक उन्होंने हुकूमत की। ये कैरोलिंजियन एम्पायर के हुक्मरान थे, और उस दौर में
हारून रशीद के दरबार में वहाँ से सफ़रा आए, यहाँ से सफ़रा गए और तोहफ़े तोहाइफ के तबादले का सिलसिला रहा। तो ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। फिर ज़ुबान का, अदब का, तर्जुमों का, उलूम व फ़नून का और जो अमूमी मीरास है इस पर गुफ्तगू होगी। ज़ुबान कैसी थी उस ज़माने में, अदब कैसा था और तर्जुमे जो हुए अंजाम पाए, जो दिए गए इन सब के हवाले से गुफ्तगू होगी। If we just look at the political expansion of the Abbasids, we'll be finding that uh, you know you can simply have an idea, uh, an exact idea of the expansion, political expansion associated with the Abbasids. सियासी लिहाज से उनका जो हुकूमत का जो जोग्राफिया था वो कितना वसी था, इससे आप हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी इसमें देखिए पूरा जो अफ़गानिस्तान का ख़ित्ता है, सीस्तान है, दैलम है और किरमान है और ट्रांसोक्सियाना है, बुखारा और समरकंद वग़ैरह ये जो ख़ित्ते हैं ये सारे के सारे और ये उस ज़माने में खुरासान कहलाते थे। खुरासान का ये ख़ित्ता था और इसमें खुरासान के वालियों ने जैसे ताहिर का नाम आया और जिसका बड़ा किरदार था, तो जब इसको फ़तह किया तो फिर उसको वहाँ का वाली बनाया गया, गवर्नर बनाया गया और बाद के अदवार में वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रहे। वो अब्बासी हुक्मरानों के ताबेदार रहे, लेकिन जो इंतज़ाम-ए-इंसराम का हिस्सा है उसमें बड़ी हद तक वो आज़ाद रहे। यही वजह है कि वहाँ के हुक्मरानों ने अपने नाम से सिक्के भी बनाए, सिक्के भी उन्होंने मिंट किए। They had also minted their own coins. So although they were the governors, primarily they were the governors of the Abbasids, but they were very much independent sort of. So you can see that this aspect, this political expansion that represents as of now the all of say present day Bukhara and Khorasan and some segments of Afghanistan, Sistan, etc. And of course, the present Iran. Uh, and of course, the entire Arabian Peninsula alongside Egypt, ये जो पूरा का पूरा अफ्रीका का हिस्सा है जिसमें कि मिस्र भी आता है और अरेबियन पेनिनसुला का ये हिस्सा, तो ये सारे के सारे अब्बासी हुक्मरानों के ज़हर के ताबे में थे। और यहाँ पर फिर इस नक्शे में आप ज़रा-सा स्पेन को देखिए, तो स्पेन उस वक़्त वहाँ पर हुक्मरानी उमवियों की हो गई थी। व्हेन द उमय्यड्स वर डिस्टेबलाइज्ड फ्रॉम or deseated from the power, removed from the power in East, they had consolidated their power in West, in Spain. Abdurrahman al-Dakhil, this was done by Abdurrahman al-Dakhil, as we have seen. When there was the Abbasid carnage in Damascus, दिमश्क में जब अब्बास जब उमवी खुलाफा को एक एक करके ख़त्म किया गया, तो किसी तरह से बच बचा के अब्दुर्रहमान दाखिल बस वो एक उमवी शहजादा बच गए, उनको अब्दुर्रहमान दाखिल उनका नाम है। उन्हीं को सकर कुरैश कहा जाता है, फैल्कन ऑफ कुरैश उनको कहा जाता है। तो वो जो हैं किसी तरह से स्पेन पहुँचे और वहाँ फिर जो है उनकी हुकूमत कायम हुई। इससे पहले उमरा का सिलसिला था और उसके बाद फिर मुआहिदीन और मुराबितीन का ज़माना आता है, जबकि अब्बासियों का एक तरह से अब्बासियों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। तो ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन का नक्शा है। Abbasid Khilafah, primarily in the eastern part, it represents around 511 years. ये 511 तक का अरसा है। 511 सालों तक उनकी हुक्मरानी रही है और इनके खुलाफा वगैरह के नाम इस तरह से देखे जा सकते हैं इस चार्ट में। इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं अभी इजमाली तौर पर गुफ्तगू करूँगा। इसमें कुछ स्लाइड्स हैं। इनमें ये है कि तारीख़नामा है, मोहम्मद बलआमी की किताब है तारीख़नामा। उसमें उन्होंने अबुल अब्बास अस्सफ़ाह की इमेज बताई है, इमेज पेश की है।
ज़ाहिर है उस ज़माने में तस्वीरें बनाने का सिलसिला तो नहीं था। तो अबुल अब्बास अल-बलआमी, मोहम्मद अल-बलआमी जो कि 10वीं सदी के हैं, उन्होंने तारीखनामा में अ, अब्बास अस्सफ़ाह जो कि पहले अब्बासी हुक्मरान रहे, उनकी एक इमेज इसमें पेश की है। अबुल अब्बास अस्सफ़ाह लगभग 750 से लेकर के 754 तक इनकी हुक्मरानी रही है। जहाँ भी आर होता है तो आर का मतलब रेन होता है। रेन का मतलब जिस ज़माने में, जिस अरसे में उन्होंने हुकूमत की। अगर डी होता है तो उसका मतलब इसमें इंतकाल किया। अगर सिरसा होता है, सिरसा CIRCA लिखा रहता है तो उसके माने होते हैं तकरीबन, हवाले। यानी अगर एग्ज़ैक्ट पीरियड नहीं होता है तो फिर सिरसा लिखा जाता है। अब्बासी दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब्बासी एम्पायर के बहुत से ऐसी रिमेन्स हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। जैसे सामर्रा। सामर्रा जो असल में सुर्रमन रआ था, उसी से सामर्रा हो गया। ये एक सिटी है और ये अब्बासी खिलाफत, ये भी पाया-तख्त रहा है। सामर्रा also has been the Darul Khilafa of the Abbasids, which uh, and here among the remains of of Samarra belonging to the Abbasids, you will be having this Caliph's palace, which was constructed, whose construction began in 1836. So the remains are still there. अब्बासी दौर में जो आसार पाए जाते हैं आज भी, उनमें सामर्रा में जो कसर अब्बासी है वो है। इसके अलावा ये आपको सामर्रा में जो सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका उसके मीनार का ये हिस्सा आपके अब भी आपको नजर आता है। You'll be having this minaret of the grand mosque of Samarra, uh, which was built from 848 to 852, when Samarra was the capital of the Abbasids. This is Qasr al-Ashiq, Qasr al-Ashiq in Samarra, which was built in 877 and 882. ये कसरुल आशिक, ये भी आज मौजूद है, जिसको कोई भी जा करके देख सकता है। अब्बासी दौर में उलूम व फ़नून की बहुतात रही है। ड्यूरिंग द अब्बासिड पीरियड्स you'll be having a rather you must be recollecting that when we talk about the Abbasid period, it's actually about the paragon of the Muslim culture, the Arab culture. That's why it is known as the golden period of Islam. इस्लामी तारीख का जो अहद ज़र्री है उलूम फ़नून के लिहाज से, तो उसको अब्बासी दौर को कहा जाता है। और उसमें मदरसा मुस्तनसरिया बहुत ही मारूफ मदरसा था। यूनिवर्सिटी थी यहाँ। उस ज़माने में जो इस तरह के मदरसे जो थे, उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था। आप खुद इसे इमारत को देख लीजिए, जो है ये सन 1227 में मदरसा मुस्तनसरिया बगदाद में, और जो आज तक मौजूद है। इस तरह के बहुत से दूसरे इदारे, दूसरे मदरसे मौजूद हैं। खुद हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से मदरसे रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटियाँ थीं अपने वक़्त में। जैसे मदरसा फ़िरोज़ शाही है दिल्ली में, वो जो है उसके आसार आज भी पाए जाते हैं और दिल्ली में जाकर के कोई भी देख सकता है। इसके अलावा दूसरे बहुत से इदारे हैं, बहुत सी जगहों में, समरकंद में, बुखारा में, उस ज़माने में जो मदरसे थे, जो यूनिवर्सिटियाँ थी, तो ये सब इस्लामी तारीख का के जो उलूम व फ़नून का हिस्सा है, उसके हवाले से ये हमारे लिए अहम माइलस्टोन्स हैं। So, um, as we have the timeline, as it has been pointed out, so the first phase was 750 to 1258, and the second phase covers the time between 1261 to 1517. 1517 में क्या हुआ? यानी ये जो सेकंड फेज का जो इख्तिताम होता है वो किस हवाले से है? वो इस हवाले से है कि इसमें फिर जो है ये जो मिस्र है, काहिरा, ये फिर उस्मानियों के कब्जे में आ गया था। सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र को अपने ज़ेर निगूं कर लिया था, और जो अब्बासी, इस तरह से जो अब्बासी जो हुक्मरान था, जो रमज़ी तौर पर था, सिंबॉलिक था, तो उस तरह से ये सिलसिला यहाँ से ख़त्म हो जाता। वो अपने साथ उनको तुर्की ले गए, और ज़ाहिर है ये एक तरह से नज़रबंद करने का एक तरीक़ा होता था।
As regard the capitals, so you have Kufa, you have Baghdad, you have Samarra, and you have Cairo. सन 750 से लेकर के 762 तक कूफा था। अबुल अब्बास सफ़ाह का जो दारुल हुकूमत था वो कूफा में था। उसके बाद बगदाद में सन 762 से लेकर के 836 और 892 से लेकर के 1258 तक ये बगदाद में बगदाद दारुल खिलाफा रहा है। और उसके इन बिटवीन 836 से लेकर के 892 तक के ज़माने में के अरसे में सामर्रा सुर्रमंद रहा। सामर्रा को ये मकाम हासिल रहा है। उसके बाद फिर काहिरा का नंबर आता है। खुलाफा की बड़ी तादाद हम देख चुके हैं इसमें, और उसमें जो है फिर बनु बवै का हिस्सा आता है, अब्बासियों के किस तरह से फिर वो सेल्जूक से आज़ाद हो जाते हैं, वो हिस्सा आता है। और मंगोलों ने किस तरह से बगदाद को तबाह किया, ये आता है। ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। और फिर अब्बासियों ने किस तरह से अपने आप को सिंबॉलिकली काहिरा में सन 1261 में इस्टेब्लिश किया, ये हिस्सा आता है। उस ज़माने में उलूम व फ़नून के अलावा जो माशी तरक्कियाँ रही हैं, जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो मॉनेटरी सिस्टम था, अ, उसका एक हिस्सा आता है सिक्कों का हिस्सा आता है, जिसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। We'll be having one aspect that is related to the numismatics. During the Middle Ages, we don't have the paper currency. अधाए उस्ता में पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी, जैसे आज रुपये पैसे होते हैं, रुपये होते हैं। तो ऐसा नहीं होता था, बल्कि सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो दीनार सोने का होता था और दिरहम आमतौर पर चांदी का होता था। तो जो सिक्के हमें मिलते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मिलते हैं, उनमें कुछ वो भी काफ़ी हैं। उनमें कुछ मिसालें यहाँ दी गई हैं, आपके सामने हैं। ये अल अमीन जो है, जिसने कि सन 801 से लेकर के 813 का 13 तक हुकूमत की, उनकी उनका अरसे हुक्मरानी ये है। ये उनका एक सिक्का है। Charlemagne we have already mentioned that there were some diplomatic relations between the eastern part of Islam, that is over here in Baghdad, represented by the Abbasids, Harun al-Rashid. There were diplomatic relations between Harun al-Rashid, between the Abbasids and Charlemagne, that is the Carolingian Empire, in 768. Here this is an oil on canvas, which is available, which is present in Maximilian, that is gallery in Munich. म्यूनिख शहर में जो मैक्सिमिलियन म्यूजियम है, उसमें सन 1864 का एक कैनवस है, ऑयल ऑन कैनवस है। और इसमें सन 768 में शार्लमान का जो वफद आया था हारून रशीद के दरबार में, तो उसको डिपिक्ट किया गया है। तो डिपिक्ट फिर कैसे करते थे? ज़ाहिर है ये तो सन 768 का ज़माना है, 768 का इवेंट है, और इसको 1864 में इसको पेंट किया गया है। तो ये कोई तस्वीर नहीं है। असल में होता ये था कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते थे, जो कि मौजूद होते थे, ऑफ कोर्स विल बी हैविंग द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, and in historical records, in biographies, sometimes you are having a depiction of the salient features of persons, of events. Of course, they are based very much on imagination, but again, this imagination had something to do with the realities, with the facts and figures which were preserved in history books. ज़ाहिर है ये जो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के जो पेंटिंग्स हैं, तो उनमें क्या होता है, असल तो जो मुसव्विर होता है, फ़नकार होता है, उसके सामने तारीख़ी मवाद होता है। लोगों की तस्वीरें नहीं होती हैं, लोगों के बारे में मालूमात होती हैं। उनका सरापा ज़िक्र होता है, बहुत सी किताबों में सरापा बयान किया होता है। ये होता है कि उनका चेहरा ऐसा था, उनकी कद-काठी ऐसी थी, उनका रंग ऐसा था, बिल्डअप ऐसा था, दाढ़ी ऐसी थी, और वो इस तरह का जो है वो जो ताज है वो पहनते थे, वगैरह-वगैरह। तो फिर इन तफ़सीलात को सामने रख कर के एक शख़्स
इमेज बनाता था। इसी तरह के जो हैं जॉन द ग्रेमेरियन, वो एक एम्बेसडर था और जो कि मामून के दरबार में आया था, मामून के दरबार में। तो इस तरह से जो Byzantium Empire, here we'll be finding two aspects. In the first aspect, that is the relation between the Carolingian Empire and the Abbasids, and the second is related to the Byzantium Empire and the Abbasid Empire, the emissary, the embassies, the emissaries. So this has been put up, described in historical sources. तो इसमें यह है कि जो बिजेंटियम हुक्मरान जो हुकूमत थी, बिजेंटियम हुकूमत वो थी जो कि जो मौजूदा जो इस्तांबुल है, तो उसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो वो जो है बिजेंटियम एम्पायर का दारुल हुकूमत था। तो उसके हुक्मरान थ्योफिलस ने उसको भेजा था उसमें। तो ये एक इमेज है जिससे कि ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसका अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह से अब्बासी दौर में हुनैन बिन इसहाक एक बड़ा ट्रांसलेटर था और फिजिशियन था, साइंसदान था हुनैन बिन इसहाक। उसका डिपिक्शन मिलता है, उसकी इमेज मिलती है। उस ज़माने में बहुत से तर्जुमे किए गए। उस ज़माने में एक्चुअली द अब्बासिड टाइम्स वाज़ were the times when were the historical stage when the Arab culture, the Islamic culture, came into direct contact with the culture of its neighboring countries, like culture of Persia, culture of India, culture of Egypt, the Nabateans, the Copts, the Romans, the Greeks, etc. Even the culture of the Ahbash. So we'll be having all these cultures coming into direct contact. There's something like the intermingling of cultures between these regions. So this actually left many imprints, like the introduction of the new ideas, new literature, new cultural traits, etc. The translation movements, in which we'll be having that many books from the Indian languages, chiefly Sanskrit. Sanskrit, of course, at the time were translated into Arabic. We'll be having the Sanskrit Panchatantra. तो उस ज़माने में जो तर्जुमे हुए उसमें हिंदुस्तान की किताबों के भी थे, जिसमें विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है, कलीला दुन्या जिसको कहते हैं, उसका तर्जुमा किया गया। और इसके अलावा बैतुल हिकमा for this, and besides that you'll be having a large number of books which were translated from the Greek language into or the Syriac language, सुरियानी और यूनानी ज़ुबानों से तर्जुमे हुए और भी दूसरी ज़ुबानों से तर्जुमे हुए और बुनियादी तौर पर ये तर्जुमे बैतुल हिकमा में हुए। और ये एक इमेज है जो मकाम हरीरी जो कि जिसका एक नुस्खा फ्रांस के बिब्लियोथेक नेशनल में मौजूद है। उसमें ये नक्शा बनाया गया है। ये बताया गया है कि इस तरह हुआ करता था। ये जो बैतुल हिकमा है ये इस तरह हुआ करता था। इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ये है कि जब यूनानी ज़ुबान से अरबी में तर्जुमा किया गया, यूनानी ज़ुबान से तर्जुमा किया गया, सुरियानी से किया गया, हमें बहुत से ऐसे मखतूते मिलते हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं। बाइलिंगुअल का मतलब 2 ज़ुबानें हैं उनमें, यानी जो असल मतन है जिसका तर्जुमा किया गया वो भी दिया हुआ है और जो तर्जुमा अरबी में किया गया है वो भी दिया हुआ है। ये जो मखतूता है ये उसकी एक मिसाल है। इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट विल फाइंड इन दैट द Syriac book, the Suryani is actually known in English as Syriac. There is difference between Syrian and Syriac. सीरियन तो शामी हो गया और जो सीरियाक है वो सुरियानी होता है। तो ये एक मिसाल है, एक मखतूता है जिसमें कि सुरियानी और अरबी, यानी सुरियानी में असल मखतूता था और उसका तर्जुमा किया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। उस ज़माने में इदरीसी बड़े जोग्राफिया नवीस थे और वो सबसे पहले इंसान थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दुनिया का नक्शा बनाया, जिसमें कि नॉर्थ पोल को भी दिखाया।
तो ज़ाहिर है दुनिया का नक्शा आजकल तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है। नाउ विल बी हैविंग द मैप ऑफ द वर्ल्ड एवरीवेयर। But it was in the 12th century that we had the earliest examples of the world map. And one of these world maps are attributed to Al-Idrisi. When Baghdad was seized by the Mongols, which was the siege was led by Halaqu Khan in 1258, it is illustrated in a copy of the 4th century Jami al-Tawarikh by Rashiduddin al-Hamdani. रशीदुद्दीन अल हमदानी ये खुद इसमें हलाकु खां की फौज में थे और उन्होंने जामे तवारीख लिखी। जामे तवारीख में उन्होंने बहुत से नक्शे दिए हैं और उन नक्शों में उन इमेजेस में जाहिर है एक इमेज ये भी है कि किस तरह से इसको बगदाद को तबाह किया गया। उसके बाद फिर शायरी का हिस्सा आता है, अदब का हिस्सा आता है। अदब में उसमें बहुत सी नई चीज़ें उस ज़माने में वजूद में आई। यानी अगर ओवरऑल इस मजरनामे को देखें, इफ यू जस्ट लुक एट द ग्रैंड सिनेरियो ऑफ द पोएटिक्स ड्यूरिंग द अब्बासिड टाइम्स, so we'll be having that we have the panegyric poetry which is known as Sher al-Madih, al-Madh or Madih. You have Sher al-Haja, satirical poetry. You have Sher al-Rasa, the elegiac poetry. You have Sher al-Ghazal, love poetry. You have Khamriyat, the wine poetry. You have Ghilmaniyat, that is Ghilmaniyat, a special type of amorous poetry which is dedicated to something like bizarre examples of not the men, not the women, rather the young boys, which is known as the Ghilmaniyat. Because of so many reasons which might be discussed after we finish this presentation. Then you have the political poetry, Asher al-Siyasi. You have the philosophical poetry, Asher al-Falsafi. You have the ascetic or the pious poetry, the spiritualistic poetry, which is known as Zuhdiyat. You have the Mulimmat, the poetry of the sufferings. Then you have the Mulamma'at, the bilingual poetry. Bilingualism was there in poetry, in which, because before that we have the poetry which was in one language, of course, and here it was the Arabic. But because of the special nature of the society, we'll be having that al-Mulamma'at takes place, bilingual poetry, in which there is something like a mix between Arabic and Persian, for example. Then you have Wasfiyat, descriptive poetry, al-Madaih al-Nawawi, Ashair al-Ijtimai, social poetry, the mystical poetry, the nature poetry, which is also known as the nature prelude. You have the polemical poetry. You have the polemical poetry alongside the new things in all these genres. Then, of course, you'll be having the different names in all these types of poetries. So. Alongside the prose, the scenario related to prose, which would be classified into the religious prose, the literary prose, the historical prose, the philosophical prose, the prose related to anecdotes, किस्से कहानियों का हिस्सा जो है अफसानवी अदब है। यानी जब हम नसर पे आते हैं तो वहाँ पर मजहबी नसर है, दीनी, जैसे कुरान है, हदीस है, तफसीर है, इस तरह के जो उलूम है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है, तो ये हिस्सा हमें मिलता है। फिर अदब का हिस्सा मिलता है। अदब में मकाला नवीसी है, तनकीद है और उसमें ये हिस्सा है। उसके बाद फिर तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ी लिटरेचर है, उस ज़माने के जो मौरख़ीन थे। फ़लसफ़ा है, ज़ाहिर उस ज़माने में बड़े फ़लासफ़ा पैदा हुए, जितने अहम तरीन फ़लासफ़ा हमें इस्लामी तारीख़ में मिलते हैं, उनका ताल्लुक़ इस ज़माने से है। वो राज़ी हों, वो ग़ज़ाली हों, और जो ये फ़लासफ़ा हैं उस ज़माने में किंदी हों। किंदी वो सबसे पहले फ़लसफ़ी थे। फिर क़िसस का हिस्सा आता है, अफ़सानवी हिस्सा आता है, दास्तानों का हिस्सा आता है। We will be having this aspect of the fictions, which is first, which it was based on the translations like Kalila Dimna and Alf Layla wa Layla, alongside the legacy of Qisas, which was inherited, which came down from the from the past, like Qissat Antar, Qissat Gilgamesh. क़िसस का जो दास्तानवी हिस्सा है, उसमें एक हिस्सा तो वो है जो कि तर्जमे पे मबनी था,
मिसाल के तौर पर उसमें हिंदुस्तान की किताबों का तर्जुमा किया गया, उनमें खुद उस अल्फ लैला व लैला भी इस हवाले से आता है, क्योंकि हज़ार दास्तान में असलन तो हज़ार दास्तान से लिया गया था जो फ़ारसी में था। लेकिन उसमें अल्फ लैला में बहुत से ऐसी दास्तानें हैं जो कि मशरक़ से ली गई हैं, हिंदुस्तान से ली गई। उनमें कुछ दास्तानें वो हैं जिनका ताल्लुक़ खुद इसमें है, पंचतंत्र से है, कलीला व तिमना से है। कुछ जो गौतम बुद्ध की जो की कहानियाँ हैं उन पर मबनी है। उसके बाद फिर ज़ुबान और तनक़ीद के हवाले से है, खुतबात और वाज़ नसीहतों के हवाले से है, फिर मुनाज़रात से है, इख़वानियात का लिटरेचर आता है, रसाइल का आता है, मक़ामात का आता है, और फिर तर्जुमे का जो लिटरेचर है वो आता है, और इस तरह की मुतअद्दिद और चीज़ें आती हैं। तनक़ीद के हवाले से अगर देखा जाए, if I just look at the scenario related to criticism, we have that it was reinforced. It was primarily reinforced, structured and restructured by the Greek, the Jahiliyyah, the Umayyi parameters, alongside the parameters related to ulum al-balagha and scholasticism. And of course, then you'll be having the madaris, which have been dealt with. तो किसी भी अदब में जो तनक़ीद का हिस्सा है, बहुत ही अहम होता है। तो जिस तरह से अब्बासी दौर का अदब अहम था, उसी तरह से उसका जो तनक़ीदी लिटरेचर है, वो बहुत ही अहम था। ये जो तनक़ीदी लिटरेचर है, नक़्द का जो हिस्सा है, क्रिटिसिज़्म का हिस्सा है, उसमें यानी अब्बासी दौर में जो मज़रनामा उभरता है, उसमें हमें 3 मकाते फ़िक्र, बुनियादी तौर पर 4 मकाते फ़िक्र मिलते हैं। तो एक तो ये है कि एक वो मकतब फ़िक्र है जो कि ज़माने जाहिलियत और उमवी दौर से चला आ रहा था। क्योंकि उमवी दौर में जो तनक़ीद के हवाले से, जो ज़ुबान और अदब के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो एक तरह से इससे पहले के जो अदवार थे, उन्हीं की कंटिन्यूटी थी। तो उसके बाद फिर बलागत का हिस्सा आता है अब्बासी दौर में, फिर इल्म कलाम का हिस्सा आता है, स्कोलास्टिसिज़्म का हिस्सा आता है। और उसके साथ भी एक दूसरा हिस्सा भी आता है जिसका ताल्लुक़ अंदरून से नहीं था, और वो था यूनानी किताबों का तर्जुमा। तो यूनान की जो जिन किताबों का तर्जुमा किया गया, उनमें मुतअद्दिद किताबें ऐसी थी जिनका ताल्लुक़ अदब से था। The Greek legacy, which was translated into Arabic during the Abbasid times, under the patronage of the caliphs and the rulers and the chamberlains, the wuzara, the wazirs. Some of these books had to do with criticism, poetics and criticism, like Kitab al-Sha'r wa Kitab al-Khataba, written by Aristotle. अरस्तू की किताब शेर और अरस्तू की जो किताब खताबा है, ये तनक़ीद के मैदान में दो अहम वो किताबें हैं जिनका यूनानी ज़ुबान से तर्जुमा हुआ। ज़ाहिर है उसके बाद फिर फ़लसफ़ा और मंतिक़ की बहुतरी किताबें हैं, और तिब की और जोग्राफ़िया की बहुत सी किताबें हैं जो कि तर्जुमा की गई। हमें सुक़रात, बुक़रात, अरस्तू, अफ़लातून वग़ैरह-वग़ैरह, ये सारे जो यूनानी फ़लासफ़ा के नाम आते हैं, उनकी किताबों का तर्जुमा किया गया। लेकिन ख़ास तौर से तनक़ीद का मैदान हमारे लिए अहम है। उसमें देखिए अरस्तू की जो किताब है पोएटिका और रिटोरिका, तो ये इसके मुतअद्दिद अरबी में तर्जुमे मौजूद हैं और एडाप्टेशंस मौजूद हैं। अबू बिश्र मत्ता बिन यूनुस ने ये तर्जुमा किया था, और भी दूसरे और भी लोगों ने तर्जुमे किए थे। तो अबू बिश्र मत्ता बिन यूनुस का तर्जुमा आपके सामने यहाँ पर है। इसके अलावा अरस्तू ने इसको इन्होंने इब्न रुश्द ने अरस्तू की किताब की तलख़ीस की थी। और जो है, इसके अलावा हमें दूसरे मुतअद्दिद नमूने मिलते हैं। इसमें आपको राइट हैंड पे ये जो एक मखतूता है, तो ये जो इसका अबू बिश्र मत्ता बिन यूनुस ने जो अरस्तू की किताब का तर्जुमा किया था, उसका मखतूता है जो कि पेरिस में मौजूद है, और जिसका ये रेफ़रेंस है। ये नंबर है 23 से 46 नंबर में, ये पेरिस में मौजूद है। किताब शेर का जो तर्जुमा किया गया है अरस्तू का, तो इसमें पुराने तर्जुमों के अलावा कुछ नए तर्जुमे भी मौजूद हैं। उनमें एहसान अब्बास का तर्जुमा मौजूद है, अब्दुर्रहमान बदवी का तर्जुमा मौजूद है, शुक्री अय्याद का तर्जुमा मौजूद है, इब्राहिम हम्मादा का तर्जुमा मौजूद है। तनक़ीद के मैदान में
जो असातीन, जो बड़ी शख्सियतें हैं, उनमें क़ुदामा बिन जाफ़र हैं, उनकी ये किताबें हैं नक़्द शेर और नक़्द नस्र। क़ैरवानी की किताब है इब्न रशीक़ क़ैरवानी, जो मारूफ़ किताबुल उम्दा है, ये उसकी तस्वीर है। हाज़िम अल-क़त्ताजिन्नी उस ज़माने के एक बड़े नाक़िद थे, मिनहाजुल वलक़ा व सिराजुल अदबा उनकी किताब है। ये उस किताब की तस्वीर आपके सामने है और इसके मंज़रनामे पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। उस ज़माने के जो तनकीद निगार हैं, तनकीद के मैदान में उनको अगर हम क्लासिफ़ाई करते हैं, इफ यू जस्ट क्लासिफ़ाई द मैन ऑफ the critics of the Abbasid times, we'll be finding that during that period we don't have that sort of specific nomenclature or classification as we have as something distinct, quite distinct from the other. So in modern times we have the concept of the historian of literature. We have the writers, you have the rhetoricians, you have the grammarians and the logicians, we have the men of letters, we have the critics. But during the Middle Ages, sometimes all these persons, all these peoples doubled up as each other. आज के वक्त में जो तकसीम है कि एक मौर्रिख होता है, अदबियात का मौर्रिख होता है, लेकिन वो तनकीद निगार नहीं होता है। मुसन्निफ़ीन होते हैं, वो तनकीद निगार नहीं होते हैं। उलमाए बलागत होते हैं, इस तरह से मंतिक़ के और नहव सर्फ़ के, यानी जो कवायद है, ज़ुबान के जो कवायद हैं, उनके उलमा फ़ुज़ला होते हैं या उदबा होते हैं, तनकीद निगार होते हैं, तो उनकी अलग-अलग तक़सीम है। अदहाए वुस्ता में ये तक़सीम नहीं थी। बड़ी हद तक उनकी शख्सियतें कामूसी हुआ करती थी। अगर आप तनकीद निगारों को देखें तो मुतअद्दिद शख्सियतें आपके सामने मिलती हैं। इब्न सल्लाम जमाही आते हैं, इब्न अल-मुअत्तज़ आते हैं, जाहिज़ आते हैं, इब्न क़ुतैबा आते हैं, इब्न रशीद क़ैरवानी आते हैं, अबू हिलाल अस्करी आते हैं, क़ुदामा बिन जाफ़र हैं, अल-आमुदी हैं, इब्न जिन्नी हैं, हाज़िम अल-क़त्ताजिन्नी हैं, अल-हुसरी अल-क़ैरवानी हैं, याक़ूत अल-हमवी अर्रूमी हैं। और इनके अलावा मुतअद्दिद और शख्सियतें हैं और इनकी वो किताबें हैं जो कि मौजूद हैं, उनका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि उस ज़माने में, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। मिसाल के तौर पर उस ज़माने में जो हैं सिर्फ़ ये उलूम व फ़नून ही नहीं थे, इनके अलावा दूसरे भी ऐसे उलूम व फ़नून थे, फ़नून का हिस्सा, जैसे म्यूज़िक का हिस्सा, शेर और ग़िना का हिस्सा, अ, और उस पर किताबें लिखी गई हैं, उन पर इन मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई हैं। तो ये हिस्से मौजूद थे। इससे उस ज़माने की जो समाजी तारीख़ थी, जो समाजी मंज़रनामा था, सोसाइटी कैसी थी उस ज़माने में, फ़नून लतीफ़ा कैसे थे। क्योंकि कोई भी अगर तहज़ीबी पस मंज़र है, तहज़ीबी मंज़रनामा है, तो उस तहज़ीबी मंज़रनामे को उलूम व फ़नून के साथ-साथ जो अदबियात हैं और इसके अलावा जो फ़नून हैं, फ़नून लतीफ़ा जिनको कहा जाता है, उनमें मौसीकी आती है और उसमें ग़िना का हिस्सा आता है, उसमें रक़्स का हिस्सा आता है। तो ऐसा नहीं है कि अब्बासी दौर में ये चीज़ें मौजूद नहीं थीं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो उसको हम एक ख़ास पस मंज़र में देखते हैं। तो बल्कि ये हिस्सा भी था, उसमें म्यूज़िक का भी हिस्सा था, डांस का भी हिस्सा था और फ़नून लतीफ़ा के वो सारे के सारे हिस्से मौजूद थे, जो जिसके बगैर हम किसी भी सक़ाफ़त का, तहज़ीब का, किसी भी सभ्यता का उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। So when we think about a culture, this culture comprises of so many things. So it is not simply the religious sciences or the literature or the social sciences. Of course, in the domain of social science, we will be having the legacy of the Abbasids to be of utmost significance. Alongside the literature related to the sciences, proper sciences, अब्बासी दौर में जो साइंसदान थे, तो उनका जो सरमाया है वो अहम तरीन सरमायों में उसका शुमार होता है। उस ज़माने में जो जोग्राफ़िया के माहिरीन थे, उस ज़माने में जो रियाज़ी के माहिरीन थे, तिब के माहिरीन थे, अब्दुर्रहमान सूफ़ी का नाम लीजिए मिसाल के तौर पर, वो बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन थे, अब्दुर्रहमान सूफ़ी। इब्न अल-हैसम का नाम भी इस हवाले से आता है। तूसी का हवाला, नसरुद्दीन तूसी का नाम आता है और भी बहुत ही शख्सियतें हैं। और इंजीनियरिंग के मैदान में, फ़िज़िक्स के मैदान में, बायोलॉजी के मैदान में, मेडिसिन के मैदान में,
एस्ट्रोनॉमी के मैदान में। अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी उसी ज़माने के थे, और जिनकी जो जो अल-ख़वारिज़मी जो है एल्गोरिदम उन्हीं की तरफ निस्बत है, और जिसकी बुनियाद पर समझिए कि ये जो कंप्यूटर साइंसेज़ हैं, अ, अ, उनका एक अहम हिस्सा है एल्गोरिदम, खुद कंप्यूटर बनाने के हवाले से। तो ये है। तो या इस तरह से ज़ीच का हिस्सा आप ले लीजिए। तो किस तरह से चीज़ें बनाई जाती थी, उस्तरलाब कैसे बनाया जाता था, उस्तरलाब का हिस्सा आगे के जो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी अगले उसमें, तो मैं आपको कुछ उस्तरलाब वगैरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे हिस्से थे। तो ऐसा नहीं था कि ये सूखा साखा सा मुआशरा था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अदब की और शायरी की बात होती थी, या फिर कहिए कि जो है उलूम दीनिया पर गुफ्तगू होती थी, कुरान और हदीस है और तफसीर है या तसव्वुफ़ है, नहीं। इसके अलावा साइंस का हिस्सा, रूहानियत का हिस्सा, समाज उलूम का हिस्सा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंसेज़ हैं, ओके, अलोंगसाइड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एंड बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें थी। इनके साथ-साथ खुद फ़नून लतीफ़ा का भी बड़ा हिस्सा था। So with this, I'll be just pausing to take up questions from the students. किसी भी ज़ुबान में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Yes. Sir, I have two questions. Okay. How Abbasid culture is different from Umayyad culture? Question number one. Question number two. What is the role of Indian culture in Abbasid period? Okay. Very nice questions, because they will be opening to us some significant aspects of the Abbasid period in terms of sciences, in terms of literature. The literary scenes were having associated with the Abbasid times. These questions would be helping us to understand them. The first question was how Abbasid Abbasid culture was different from the earlier cultures, earlier Arab cultures, like the pre-Islamic culture, the Umayyad culture. The immediate culture that was over there was the Umayyad culture. And before that, of course, we'll be having the early Islamic culture, and of course the Jahiliya culture, because there's this trajectory in terms of time. एक खत सी बन जाती है, एक लकीर सी बन जाती है, जिसमें कि जाहिली दौर का हिस्सा है, फिर अर्ली इस्लामिक पीरियड का हिस्सा है, उसके बाद फिर आपका इसका हिस्सा आता है, उमवी दौर का हिस्सा आता है, और उमवी दौर के बाद अब्बासी दौर। और अगर आप टाइम फ्रेम के हवाले से देखें यानी आप इस तरह से देखिए कि इस्लाम ज़ाहिर है 570 से आप ले लीजिए, 570 या 610 को आप ले लीजिए, 610 यानी 7वीं सदी। 7वीं सदी से पहले जो हिस्सा था वो ज़माने जाहिलियत का था, ठीक है? उसके बाद फिर अर्ली इस्लामिक पीरियड आता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आता है, खुलाफा राशिदीन का ज़माना आता है, और उसके बाद फिर उमवी दौर आता है। तो ये जो दोनों जो हिस्से हैं, इनमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 200 साल का भी अरसा नहीं है। The gap between the Abbasid times and the pre-Islamic period, which is known as the Abbasid, which is known as the Jahiliyyah period, of course, it doesn't exceed, it is less than 200 years. So, 200 years, when we talk about a culture or the cultural trajectory of a nation within a specific framework of language, and in this case, it is the Arab culture, we'll be finding huge differences or departures. Of course, the evolution is there. There would be this episode related to evolution. Evolution is there. 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा नहीं हो, 200 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता है, एक ज़ुबान के हवाले से, एक सभ्यता के हवाले से, एक जोग्राफी के हवाले से। उसमें जो अहम चीज़ें आई वो क्या थी? वो इस्लाम का आना था, इस्लाम का आना था, ठीक है? जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं। When you talk about Islam, now why I'm saying this? I'm saying this because there's sort of continuity. When you talk about language,
language, then language was the same. Language was one, and that was the Arabic language. And standard Arabic, it was the standard Arabic. And we know that the language, standard Arabic language, up to the first phase of the Abbasid times, was authentic, was hujjah, الشعر كان حجة، اللغة كانت حجة في حتى الفترة الأولى من العصر الحكم العباسي أو الإمبراطورية العباسية. معنى ذلك أن اللغة كانت واحد، كانت معيارية. اللغة في العصر الأول، في الفترة الأولى من العصر الجاهلي، من العصر العباسي، كانت معيارية، مثل ما كانت اللغة معيارية في العصر الأموي والعصر الإسلامي الأول والعصر الجاهلي. फिर ट्रेजेक्टरी थी जुबान के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं थी, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ओके, उसमें नई तब्दीलियां क्या थी? पता चला कि कुछ अल्फाज इस्लाम के हवाले से ज़्यादा चलन में आ गए, कुछ अल्फाज कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जिनको क्या किया गया, उनको जो है ओके I'll be taking up this question, Khadija Omar, after responding to the question, these two questions. You'll have to repeat this question after some time. Yeah. So this was it. So the continuity in regard to Arabic was the same. It was of standard nature. Now there were some changes the changes were there primarily in theology, in ideology and theology. And then of course the representation of ideology in culture, in society. जब एक नया मजहब आता है, नई फिक्र आती है, तो समाज में उसका असर होता है। तो ये हिस्सा था। अगर हम जुबान और बयान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं अब्बासिड कल्चर, तो उसमें जो पहला हिस्सा था, पहला दौर था, उसमें और इसके पहले के जो अदवार थे उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ज़ुबान यहाँ भी हुज्जत थी, यहाँ मयारी थी। बाद के अदवार में, बाद के जो फेजेस होते हैं, ज़ाहिर अब्बासी दौर को 4 फेजेस में बांटा जाता है। तो बाद के फेजेस में फिर ये ज़ुबान कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि उसमें फिर गैर अरबी जो अनासर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द नॉन अरब एलिमेंट्स ओवरकमिंग द सिनेरियो in the backdrop of in the background of the political expansion of Islam. इस्लाम की जो सियासी इशाअत हुई, इसमें इसके हवाले से जो हमें ज़ुबान बयान का जो नज़रनामा मिलता है, यानी ज़ाहिर है फिर यहाँ पे ईरानी भी आए, इसमें तुरानी भी आए, इसमें तुर्की भी आए, हिंदुस्तानी भी आए, रूमी भी आए, ये सारे के सारे लोग आए, और इस तरह से फिर एक ऐसा माहौल बना जो कि पूरी तरह से अरबी नहीं था। प्राइमरीली तो अरबी था, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से हुआ कि जो है नई चीज़ें सामने आई, ज़ुबान के नए पहलू सामने आए, और ज़ुबान मेयारी नहीं रही। ज़ुबान मेयारी नहीं रही का मतलब ये नहीं है कि जो अदबियात हैं, जो लिटरेचर है, उनकी अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़ुबान का मेयारी होना बिल्कुल अलग बात है, और उसका अहम ना होना बिल्कुल ही अलग बात है। ज़ाहिर है आज दुनिया में कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ चूँकि उसको अरबी अच्छी आती है, लिहाजा सिर्फ इस वजह से कि उसको अच्छी अरबी आती है वो गलती नहीं कर सकता, ये कोई दावा नहीं कर सकता। हुज्जा का मतलब ये होता है कि इसमें बशार और बशार से पहले कोई भी शायर, किसी भी शायर से आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपने गलती की। शायर गलती कर ही नहीं सकता है, वो गलती ज़ुबान के लिहाज से वो गलती कर ही नहीं सकता है। जो उसकी ज़ुबान से निकल गया वही क्या है? वही ज़ुबान है, वही हुज्जा है, वही ग्रामर है। हम ये नहीं कर सकते हैं ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है। इम्रुल कैस गलती कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? भाई अरबी वही है जो वो बोल रहे हैं। ओके, ये गलत और सही आपके हवाले से हो सकता है, उनके हवाले से नहीं हो सकता। इसको हुज्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हुज्जत नहीं रही तो उसके बाद वो हिस्सा कमज़ोर हो गया, ऐसा, या उसकी अहमियत, ज़ुबान की अहमियत घट गई, ऐसा नहीं है। अहमियत के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत से पैमाने होते हैं। ओके, तो अगर हम तहजीबी लिहाज से देखते हैं, फिर तहजीबी लिहाज से फिर बड़ा फ़र्क है। अगर आप अब्बासिड कल्चर की बात करें, यानी इसमें लैंग्वेज कल्चर की बात ना करें। When we say culture, it means so many things. You have the language culture, you have the culture of literature,
वी हैव कल्चर ऑफ द वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, सिविलाइजेशनल वैल्यूज, समाजी कदरें होती हैं, तहजीबी कदरें होती हैं, वगैरह वगैरह। इस हवाले से बड़ा फ़र्क था, इस हवाले से बड़ा फ़र्क। सबसे पहला फ़र्क तो ये था कि अब्बासी दौर में थिंग्स बिकेम कोडिफाइड। दिस वाज़ द फर्स्ट। In the overall cultural scenario, we're finding that before that, we don't find the legacy codified. The legacy was, it was left to the collective memory. Collective memory. Of course, we'll be having some scattered examples of codification. Written legacy. बहुत ही कम ऐसी मिसालें मिलती हैं। लेकिन ज़ाहिर है बाज़ाब्ता तौर पर जो तदवीन का हिस्सा आता है, वो अब्बासी दौर में आता है। किताबों को लिखने, मुदव्वन करने का हिस्सा अब्बासी दौर में शुरू होता है। इसलिए उमवी दौर को असरुल बिदायात कहा जाता है, और जो अब्बासी दौर है उसको असरुल तदवीन कहा जाता है। ओके, तो इस हवाले से बड़ा फ़र्क है। अहद इस्लामी में कुछ इस हवाले से चीज़ें थी नहीं, मुदव्वन थी नहीं। जाहिली दौर में तो बिल्कुल ही नहीं थी। अब्बासी दौर में कुछ ही किताबें मुदव्वन थी, कुछ ही किताबें लिखी गई थी जो हम तक पहुँची हैं। मिसाल के तौर पर अत्तीजान फ़ी मुलूक हिम्यर हम तक पहुँची है। बाद के अदवार में कुछ और चीज़ें हैं जो हम तक आई हैं उस ज़माने की, जैसे तफसीर इब्न अब्बास है वो हम तक आई, वो भी ज़रा उसके बारे में काफ़ी राय हैं। ओके, या कुछ और भी मिसालें आपको मिल जाएंगी जो है। वहाब इब्न मुनब्बिह का जो मजमुआ है, सहीफ़ा वहाब इब्न मुनब्बिह, ये भी एक मिसाल है उस ज़माने की। तो कहिए कि 3-4 मिसालें मिलती हैं, लेकिन बाकी ये जो लाखों किताबें हैं जो कि अब्बासी दौर में लिखी गई हैं, जो हम तक आज मौजूद हम तक पहुँची हैं, ये जो कल्चरल शिफ्ट था, पैराडाइम शिफ्ट था, तो ये कल्चर का फ़र्क था। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि कल्चर के जो दूसरे पैरामीटर्स, उस हवाले से अगर आप देखें तो बड़ा फ़र्क था। जैसे देखिए, म्यूज़िक हमेशा रही है, रक़्स हमेशा रहा है इंसानी समाज में, लेकिन उस पर लिटरेचर हमें अब्बासी दौर में मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। लिटरेचर जो है इसमें हमें अब्बासी दौर में मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। ओके, अबुल फ़रज अल इस्फ़हानी की जो किताब है रन्नातुल मसालिस वल मसानी, इसके अलावा दूसरी और बहुत सी किताबें जो ज़माने में लिखी गई हैं। ज़रियाब का नाम आता है इस हवाले से, बहुत ही मशहूर म्यूज़िशियन थे। तो ये जो समाजी हिस्सा है, उलूम फ़नून के साथ-साथ ये जो फ़नून लतीफ़ा है, ये बड़ा फ़र्क है। ये तो इस हवाले से कुछ हिस्से ऐसे हैं, ज़ुबान और बयान के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो तो वही हैं। लेकिन इसके अलावा बड़ा तवस्सु हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और असनाफ़ के लिहाज से इवोल्यूशन हुआ। अ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि वी फाइंड दैट गिलमानियात वाज़ समथिंग न्यू, खमरियात एंड गिलमानियात वर समथिंग न्यू, मुलम्मआत वर समथिंग न्यू, जस्ट एज़ वी हैव मुअश्शहात ड्यूरिंग द अंदालूसियन पीरियड। तो होता क्या है, कि नए समाज में जो नए तकाज़े होते हैं, तो उन तकाज़ों की नुमाइंदगी अदब में होती है। तो फिर ये हिस्से हैं, ये डिपार्चर्स हैं। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर भी हमें मिलती हैं, और पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी भी मिलती है। ये असल में एक खत है, एक लकीर है, ट्रेजेक्टरी बनती है इर्तिक़ा की, जिसमें बहुत सी चीज़ें स्टैटिक होती हैं, मेयारी होती हैं, जो कि कंटिन्यू करती हैं, और बहुत सी नई चीज़ें होती हैं जो कि अलग से इवॉल्व करती हैं, नए सिरे से वजूद में आती हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ इंडिया इन द अब्बासिड कल्चर। वेल, इंडिया हैज़ प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हिंदुस्तान का बड़ा किरदार रहा है कल्चर की तश्कील में। अब्बासी कल्चर की तश्कील में हिंदुस्तान का बड़ा किरदार रहा है। इसका तारीख़ी पस मंज़र पर गुफ्तगू करूँ तो एक अलग से पूरा मुहाज़रा हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। मैं आपको मुख्तसर कुछ चीज़ें ही हम बयाँ करते हैं, इसको हम लेते हैं। देखिए, अब्बासी दौर में हम पहले बता चुके हैं, द अब्बासिड्स केम इनटू पावर, ascended to power with the help of the Persians primarily. असल में ये जो फारसी जनरल्स थे, गैर अरबों के बुनियादी ताउन से अब्बासियों को इक़्तिदार मिला। कुछ नाम हमने देखे हैं, मुस्लिम ख़ुरासानी का नाम देखा है, और भी दूसरे नाम देखे हैं इसमें, जिनका भी जिक्र किया गया है। तो ये जो मौजूदा ईरान है, जिसको पहले पर्शिया कहा जाता था, तो उसमें ज़ाहिर है, उसमें उस पुराने वक़्त में ये जो पॉलिटिकल मैप है, उस तरह के नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज है।
आज है। तो उस खित्ते में जो है बलख था, जो कि आज अफगानिस्तान में है। बलख में इनका बुद्धिस्टों का बड़ा मरकज था। बलख was epicenter of the Buddhists, and they had then in the when there was the advent of Islam, they converted to Islam. They became Muslims, and they had played very significant role in the establishment of in establishing the Abbasid rule, Abbasid authority. अब्बासियों की ताकत को, अब्बासियों को मजबूत करने में सियासी और समाजी लिहाज से, तहजीबी लिहाज से, आप कहिए सियासी और तहजीबी लिहाज से, इसमें जो ये बलख के वो उमरा जिनको बर्मकी उमरा कहते हैं, बर्मकार्ड्स कहते हैं, उनका बड़ा किरदार रहा है। द बर्मकार्ड्स हैड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस सीक्वेंस। खालिद बर्मकी, जाफर बर्मकी वगैरह वगैरह, वो हिंदुस्तानी नजाद थे। यू कैन सिंपली से दे वर ऑफ इंडियन ओरिजिन। They had become Muslims. That's why we find that they invited a significant number of Indian scholars, Indian physicians and philosophers. Okay, मनका अल हिंदी, शानाक अल हिंदी, वो तेरे नाम आते हैं जिनका जो हिंदुस्तानी अतिब्बा थे, और उनको बगदाद में उन्होंने बुलाया और वहाँ उनसे काम लिए और बड़े मनासिब दिए। और इस तरह से इस संस्कृत का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमें अरबी ज़ुबान में मिलता है। उसमें तिब की किताबें थी, उसमें फ़लसफ़े की किताबें थीं, अदबियात की किताबें थीं, जिनकी एक मुस्तक़िल तारीख़ है। देखिए, जब इस तरह से ट्रांसलेशन होता है, यानी इस हवाले से हम ये देखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूनानी ज़ुबान से अब्बासी दौर में तर्जुमे हुए, बल्कि संस्कृत से भी हुए, फ़ारसी से भी हुए, सुरियानी से भी हुए, और जो क़िब्ती ज़ुबान है, हबशी ज़ुबान है, उनसे भी तर्जुमे हुए। तो इस तरह से फिर एक नया कल्चर सामने आया जो कि ज़्यादा ओपन था। उसकी वजह से बहुत से उसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं। उसी से फिर स्कॉलास्टिसिज्म आता है, फिलॉसफी आती है, लॉजिक आती है, स्कॉलास्टिसिज्म आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। So in this sequence you'll be finding that India had very significant role in the domain of translations, in which as we find that legacy of a significant legacy of books of Sanskrit were translated into Arabic, and that had played a very significant role. और जब किताबों का तर्जमा होता है तो सिर्फ ये अदबी सतह पर इसका असर महदूद नहीं होता, बल्कि उसमें देखिए सोचने समझने के ज़ाविये बदलते हैं, चीज़ों को देखने के ज़ाविये बदलते हैं। अब्बासी दौर में मुख्तलिफ फ़िरक़े वजूद में आए, उनमें मुतज़िला थे, उनमें बातिनिया फ़िरक़े थे, और बहुत सारे फ़िरक़े थे। इसमें तारीख़ आलम, जो अदियान आलम की पर जो किताबें लिखी गई हैं, अरबी में किताबें लिखी गई हैं, जैसे अब्दुल करीम शहरिस्तानी हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं इस तरह से, तो उनमें आप सभी देख सकते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि जो हिंदुस्तानी किताबों का कितना असर था। ये काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ है, शायद फिर किसी और मौके से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, या फिर आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इस हवाले से कि जो मुस्लिम मुतअद्दिद जो फ़िरक़े उस ज़माने में वजूद में आए, उनमें हिंदुस्तानी अफ़कार किस हद तक पाए जाते थे। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन थॉट in the emerging faith scenario, that is the emergence of different religious groups during the Abbasid time. So in this sequence we can say this contribution of India, the role of India was huge in this respect. Yes, any other questions? Khadija Omar, can you just repeat your question? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। Yes, सर go ahead. क्या अब्बासी जो एज थी उसमें फीमेल्स ने भी कुछ लिटरेचर में अपना योगदान दिया है, या मतलब कुछ लिखा है उन्होंने क्या? बड़ा किरदार रहा है अब्बासी दौर में। देखिए, बहुत बड़ा किरदार रहा है ख़वातीन का।
पूरी मुस्लिम हिस्ट्री में कभी भी इस बात की कमी नहीं रही है कि ख़वातीन ने रोल प्ले न किया हो। पॉलिटिकली भी रोल प्ले किया उन्होंने, समाजी उलूम, समाजी सतह पर भी उनका किरदार रहा है। ठीक है? अगर आप इसमें इस्लाम से पहले की बात करें तो वहाँ भी ये किरदार रहा है। इस्लाम के ज़माने की बात करें तो हज़रत आयशा का जो किरदार है, हज़रत आयशा का जो पॉलिटिकल किरदार है, वो उससे भी हम वाकिफ़ हैं। जंग जमल से वाकिफ़ हैं आप, ज़ाहिर है हम सभी वाकिफ़ हैं उसमें जो उनका किरदार रहा है। लेकिन हम यहाँ पर फ़ोकस करेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने, यानी उलूम व फ़नून के लिहाज से, यानी जो दीनी उलूम थे उनका, उनमें उनका क्या मकाम था। तो हदीस की एक बहुत बड़ी तादाद हज़रत आयशा ने बयां की है। तो इस तरह से उनकी जो स्कॉलरली जो शख्सियत है, एक आलिमा होने के हवाले से, आलिम होने, स्कॉलर होने के हवाले से उनकी शख्सियत हमारे आती है। उसके बाद आप उमवी दौर में आ जाइए तो आपको 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 जो है ख़वातीन में आपको शायर भी मिलेंगी। बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि शायर हैं। जमील बुसैना, बुसैना इस हवाले से बहुत ही अहम नाम है। अज़्ज़ा, अज़्ज़ा का भी हवाला इस हवाले से दिया जाता है। ठीक है? तो और मुतअद्दिद और शख्सियतें हैं। खुद इस्लामी दौर में और जाहिली दौर में शायरात का एक बड़ा नंबर आता है, बड़ी तादाद है। तो उन्होंने रोल प्ले किया है। अब्बासी दौर में देखिए, अब्बासी दौर में हुआ ये कि उलूम व फ़नून में बड़ी तोसी हुई। यानी हम यहाँ पर देखते हैं पहली बार कि जो अदबी उलूम थे या जो अब्बासी दौर में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहिए कि अदब का हिस्सा हम तक पहुँचा है, शायरी पहुँची है, नस्ल का थोड़ा हिस्सा पहुँचा है। इस्लामी दौर में क्या हुआ, जो दीनी उलूम है वो सामने आए, जैसे कुरानी उलूम हैं, हदीस के उलूम हैं, फ़िक़्ह के हैं, तफ़सीर के हैं, अक़ाइद के हैं, ये सारे के सारे आए। लेकिन अब्बासी दौर में हमें पूरा उलूम व फ़नून का एक बड़ा हिस्सा हमें ऐसा मिलता है जो कि इससे पहले नहीं थे। जैसे मंतिक़ व फ़लसफ़ा का हिस्सा आया जिसको माक़ूलात कहते हैं, समाजी उलूम का हिस्सा आया जिसको तारीख़ है, जो मिसाल के तौर पर तारीख़ है, जोग्राफ़िया है, वगैरह-वगैरह। सियासियात हैं, इक़्तिसादियात हैं, माशियात हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये चीज़ें हैं। इनके अलावा साइंसेज़ आए जिनका भी ज़िक्र किया जा चुका है। तो हमें यहाँ पर भी ख़वातीन का बड़ा किरदार हमें मिलता है। रूहानियात में भी मिलता है। हज़रत राबिया बसरिया इसी ज़माने की थी, बहुत ही मशहूर मिस्टिक रही हैं, सूफ़ी रही हैं, उनका किरदार है। और जो है मरियम अल उस्तरलाबिया का नाम आप लोग ज़हन में रखिए, मरियम अल उस्तरलाबिया बहुत ही मारूफ़ ख़ातून रही हैं। उन्होंने एस्ट्रोलॉब बनाया। एस्ट्रोलॉब बनाने में इतनी माहिर थी कि उनको अल उस्तरलाबिया कहा जाता है। आप तारीख़ी किताबों में देख लीजिए, आप किसी भी मसदर में आप देख लीजिए, इंटरनेट के जो सोर्सेज़ हैं उनमें आप देखिए, मरियम अल उस्तरलाबिया। तो इसके अलावा खुद मुहद्दिसात की, उलूम दीनिया की जो माहिर ख़वातीन थी, उनकी एक बड़ी बड़ी तादाद हमें इस ज़माने में मिलती है। शायरात की एक बड़ी तादाद मिलती है। तो देखिए कभी भी जो मुस्लिम हिस्ट्री है, या चलिए हम अरब हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ख़वातीन ने इस हवाले से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हाशिए में रहीं या मादूम रहीं, ऐसा नहीं रहा। उनका बुनियादी किरदार रहा है। यस, खदीजा उमर, कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? डार साहब, इनका क्वेश्चन क्या था, आप बताएं। वालेकुम सर, उनका क्वेश्चन सर ये है कि शायद अब्बासी दौर में ट्रांसलेशन जो हुआ उसकी नीड क्या थी और उसी से रिलेटेड अच्छा। अलग अलग कंट्रीज की बुक्स ट्रांसलेशन हुआ, उससे सोसाइटी मुतासिर भी हुई थी। ओके, ओके, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स। What was the need of the translation during the Abbasid times? Well, when we say needs, so it's actually
something that takes place in society. ज़रूरत किसे कहते हैं? ज़रूरत उसको कहते हैं जो कि समाज में पाई जाती है। समाज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब भी हम उसको क्या कहते हैं? ज़रूरी कहते हैं। When a thing is needed by society, we take it as necessary. So it's actually the society, the type of the society, the nature of the society that plays role in this regard. Now, in the early Islamic period, the society was not expanded. It was limited to the Arabian Peninsula. During the early Islamic period, it crossed, it went far beyond the Arabian Peninsula, as you know. It covered the entire Arabian Peninsula, crossing over to the adjoining areas, the neighboring countries like Persia, like Egypt, and other African territories, right? Like Transoxiana, like India. तो इस तरह से क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। पहले हिस्से में एक्सपेंशन नहीं होता, बाद के हिस्से में एक्सपेंशन होता है। Now what does this expansion mean? What does it imply? जब इस तरह की वसअत होती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसके आसार क्या होते हैं? देखिए, आसार को आप जुबान के हवाले से देखिए और जो जुबान बोलने वाले हैं उनके हवाले से देखिए। Look at the peoples who speak our language and the languages. So before that it was only Arabic. Now you have during the Abbasid times, I mean, just say it, that later stages, the later periods, you are having the Persian, you are having the Syriac, you are having the Greek, you are having the Coptic. Means you are having a mix of languages. So linguistic plurality is there. So you're having a linguistic plurality. Now, what was the source of this linguistic plurality? Persians, Indians, Syriac peoples, Greeks, Romans. ये जो plurality है ये वहां से आई, उन लोगों से आई. Who were these peoples? These peoples were independent of the Arab culture. They had their own identity. उनकी cultural identity अलग थी. Their language was different. Their culture was different. Their religion was different. Their cultural paradigms were different. उनके बुदबाश के तरीके अलग थे, तहजीबी अतवार अलग थे, तमद्दुनी कदरें अलग थी, समाजियात अलग थी, मजहब अलग था. अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, या उनमें से एक बड़े हिस्से ने, एक बड़ी मकदार में, a significant ratio, a significant chunk of these people embrace Islam. Okay, now when they came into the fold of Islam, that is the Arab society, call it Arab society, epicentered in or around, say, that is the Arabian Peninsula, like Baghdad and Kufa and Basra and Damascus, etc. अब पता चला कि बगदाद में, बसरा में, कूफा में, दिमश्क में सारे के सारे लोग मौजूद हैं. वहां पर अरब भी है, वहां पर ईरानी भी है, वहां पर हिंदुस्तानी भी है, वहां पर तुरानी भी है, वहां पर सुरियानी भी है, वहां पर किब्ती और नब्ती भी है. सारे के सारे लोग हैं. तो इस तरह से एक लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी आती है, कल्चरल प्लुरैलिटी आती है. कल्चरल प्लुरैलिटी जब आती है तो उसके बाद फिर क्या होता है? जब भी इंसान, एक नया इंसान है जिसका मजहब कुछ और था, वो इस्लाम कबूल करता है. पहले वो पता चला कि खुरासान में रहता था, उसके बाद वो बगदाद में रहता है. पहले वो पता चला कि रोम में था, किसी रोमन सिटी में था, उसके बाद वो बगदाद में आता है, या सामर्रा में आता है, या दिमश्क में आता है. तो अपने साथ वो सभ्यता भी लाता है, अपने साथ अपने अफकार और ख्यालात भी लाता है. तो इस तरह से जो इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ, ये काल्पनिक तो नहीं है. इट इज अ हार्ड फैक्ट, इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट. ओके, तो यहाँ पर हम जो है इसके जो थॉट कंटेंट्स हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. थॉट कंटेंट जो इनबिल्ट थे, we'll finding that thought contents were inbuilt.
Okay. Yes. Okay. We'll be taking up the questions again. पहले आप इसको देख लीजिए, है ना? तो उसमें क्या हुआ? अब इस तरह से एक मिक्स सोसाइटी आती है, एक मिक्स कल्चर आता है, जिसका अफकार भी अलग है। इससे पहले रैशनलिस्टिक थिंकिंग नहीं थी। बिफोर दैट देयर वाज नो रैशनलिस्टिक थिंकिंग इन इस्लाम। Now, because of the that mixed society, you have the rationalistic thinking. Now, when you'll be having the rationalistic thinking, sometimes it will be posing questions. It will be posing questions to society. Some questions related to religion, related to religion. So, without translation, you cannot have this expansion. जब भी एक तहजीब, एक खित्ता, एक समाज, किसी समाज को जब विस्तार होता है, एक समाज जब उभरता है, उसके बाद फैलता है, तो जहाँ उलूम फ़नून के हिस्से होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किए बगैर समाज नहीं फैल सकता। When we say there is expansion of society, expansion of culture cannot be conceived in isolation of the sciences. Now, what actually happened? What actually happens is that when you have that society, which is amalgamation of culture, the Persians, the Indians, the Greeks, the Romans, the Syriac, etc., they're having their legacy. No, now here the society cannot pretend to be aloof of these things. अब समाज, जो असल समाज है, जो रिवायती समाज है, वो अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर सकती है। इस हवाले से ये जो तर्जुमे की जरूरत है, वो खुद समाज की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि शौकिया तौर पर कुछ किया गया, ऐसा नहीं था, बल्कि समाज की जरूरत थी। इसको आप इस तरह से देखिए कि पहले फर्ज कीजिए कि अरेबियन पेनिनसुला में फर्ज कीजिए कि जो है 50 लाख लोग थे। फर्ज कीजिए, इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। फर्ज कीजिए कि 50 लाख लोग थे इस्लामी पीरियड में, अहद इस्लामी अव्वल में। अब उसके बाद जब उमवी दौर में तो करोड़ों लोग थे, अब्बासी दौर में करोड़ों लोग थे, और पहले लैंग्वेज मिक्स नहीं था। There was not something like language mix, linguistic mix, no. But now you have the language mix, you have the plurality. So you have the plurality of culture, you have the plurality of language, you have the plurality of religions. So all these things required something like a translation. So it came from within. ये अंदर ही से आया, ये कहीं से उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया। और जो तर्जुमे जो किए गए, तो यही वजह है, इसको समझिए, यही वजह है कि उन कौमों के उन जुबानों से तर्जुमे किए गए जिनका बगदाद से नाता रहा, बगदाद में वहां के लोग मौजूद थे, उन्हीं के तर्जुमे किए गए। जैसे ईरानी थे, ईरानी तो एक नया लफ्ज है, जाहिर है, पर्शियंस आप कहिए, पर्शियंस थे तो पर्शियन से तर्जुमे हुए, ग्रीक्स थे, यूनानी थे, उनसे तर्जुमे हुए, रोमन्स थे, उनसे तर्जुमे हुए, सुरियानी थे, उनसे तर्जुमे हुए, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी से तर्जुमे हुए। और जाहिर है ये परामका ने बड़ा इस सिलसिले में किरदार, इस हवाले से बड़ा किरदार अदा किया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर उस जमाने में चीनी से तर्जुमा नहीं हुआ, चाइनीज, देयर वर नो ट्रांसलेशन फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज। व्हाई? Because we can hardly find something significant related to China at the time in Baghdad. So at the time, at this specific point of time, there was no translation. So actually the necessities are, given birth by the society itself. They are required by society itself. That's why you'll be finding all these things. Yes, so what was your second question? इनका दूसरा क्वेश्चन क्या था, डार साहब? सर उनका दूसरा क्वेश्चन इसी ट्रांसलेशन के रिलेटेड था कि बुक जो ट्रांसलेशन हुई उससे सोसाइटी मुतासिर भी हुई थी। डेफिनेटली देखिए, जहां भी तर्जुमा होता है, whenever there is and wherever there is translation, it would be having the impact. And as I had also made some references in this regard, some time ago, मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब तर्जुमे हुए, यानी जब हिंदुस्तान से तर्जुमे हुए, तो फिर क्या हुआ? उनके असरात मुरतब हुए। Now, what are the segments, what are the domains of influences? जो असरात हुए वो किन किन पैमानों पे हुए?
तो मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट इम्पैक्ट वाज रिलेटेड टू लैंग्वेज, like terminologies. So there were certain terminologies, vocabulary, the foreign vocabulary incorporated into Arabic. This is the first segment. What are the examples? You'll be having so many examples from Sanskrit, from Greek, as well as other languages. Okay. संस्कृत से भी बहुत से उस जमाने में जो किताबें तर्जमा हुई, जैसे जिजुल अरकंद, अल अरकंद, ये लफ्ज पहली बार वहां पे आया, पहली बार वहां पे आया। ठीक है, जीज का लफ्ज पहली बार आया, पहली बार आया। और इसके अलावा जैसे उसमें यूनानी मंतिक और फ़लसफ़े की जो किताबें तर्जुमा की गई हैं, तो उसके हवाले से फिर वो नई मिसाल इस्तिलाहें आई, जैसे असोलॉजिया, असोलॉजिया, असोलॉजिया का लफ्ज़ यहाँ पर आया, पहली बार यहाँ पे आया। ओके, तो इस तरह से जो है ज़ाहिर है ये मौजू ऐसा है कि इस पर बड़ी किताबें मौजूद हैं। मेरी भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई इस हवाले से। हमें खुद संस्कृत से बहुत से अल्फाज मिलते हैं, 100 से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं जो अरबी में गए, और बाकी फिर यूनानी से, सुरियानी से, दूसरी ज़बान, इस पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं। मुफरदातुल कुरान के नाम से जो किताबें लिखी गई हैं वो एक इसके इस मौजू के एक हिस्से से डील करती हैं। तो ये है, यानी एक तो ये क्या है, अल्फाज का हिस्सा। उसके बाद क्या अफकार का हिस्सा, अदबी सतह पर अफकार का हिस्सा, अदबी सतह पर अफकार का हिस्सा। यानी ज़ाहिर है जब पंचतंत्र का तर्जुमा किया गया, व्हेन पंचतंत्र वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक एज कलीला व दिमना, इट हैज द इम्पैक्ट, इट हैज द इम्पैक्ट। तो थॉट यहाँ से गई, अदबी पैमाना गया कि इस तरह से कहानियां कही जाती हैं, इस तरह से कहानियां कही जाती हैं, ये पैराडाइम गया। उस तरह से जब अल्फ लैला व लैला जब सामने आया हजार दास्तान का फारसी से, तो इस तरह से कहानी का एक जाविया आया। तो देखिए सबसे पहले अल्फाज आते हैं, उसके बाद कहानी के जुबान के जाविये आते हैं, कम्युनिकेटिव जो स्किल है, पैटर्न है, स्टाइल है, ये हिस्सा आता है। ज़रबुल अमसाल और कहावतें भी आती हैं फिर उसके बाद, यानी एक कल्चर की कहावतें ज़रबुल अमसाल दूसरे कल्चर में जाती हैं, विल बी हैविंग दिस एस्पेक्ट टू। ओके, नाउ मूव टू द ग्रेटर एस्पेक्ट which is more significant and sometimes it is dangerous also. Okay, how it is that the thought in toto, अफकार का जो असर होता है, अफकार का असर। अब देखिए अगर ज़ाहिर है यूनानी से किताबें तर्जुमा की जाएंगी, यूनानी कल्चर से, यूनानी तहजीब से, तमद्दुन से, और जैसे यूनानियों में बुनियादी तौर पर तो जो है वो बुत परस्ती थी, देवमालाई सिस्टम था उनका, मैथोलॉजी थी उनकी। देखिए क्रिश्चियनिटी ये तो बाद की चीज़ है, इससे पहले जो हिस्सा था तो ज़ाहिर है ये जो सुकरात बुकरात, अरस्तु अफलातून वगैरह जो है, तो ये तो क्रिश्चियनिटी से पहले की शख्सियतें हैं, ये बाद की शख्सियतें नहीं हैं। तो उनकी चीज़ें आई, सामने आई, तो उनके उनके थॉट्स आए। यही वजह है कि तसव्वुफ में, मिस्टिसिज्म में, स्पिरिचुअलिटी में जो न्यू प्लेटोनिक फिलॉसफी है उसकी एक मिसाल है। इट वाज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, न्यू प्लेटोनिज्म इन mysticism, the impact of new platonism, new platonic philosophy। आप लोग इस मौजू पे पढ़ लीजिएगा कि न्यू प्लेटोनिक फिलॉसफी क्या है और मिस्टिसिज्म पे किस तरह से रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तर्जुमे के जो असर आसार हैं उनका एक असर ये भी है। और इसके बाद फिर जो है, जो देखिए इस्लाम में इससे पहले रैशनलिस्टिक थिंकिंग नहीं थी, देयर वाज नो रैशनलिस्टिक थिंकिंग इन इस्लाम बिफोर दैट। Do you find the philosophers during the Jahili period, the philosophers during the Islamic, early Islamic period, or the philosophers during the Umayyad period? उमवी दौर में या इस्लामी दौर में या जाहिली दौर में क्या हमें फलसफी मिलते हैं, मंतिकी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों? इसलिए उस जमाने में था ही नहीं। रैशनलिस्टिक थिंकिंग तो थी, लेकिन वो फिलोसोफर्स नहीं थे। ये फलसफी कहाँ थे? फलसफी दूसरी जगहों में थे, यूनान में थे। मिसाल के तौर पर अरस्तु है, अफलातून है, सुकरात है, बुकरात है, वगैरह वगैरह, ये फिलोसोफर्स हैं। ओके, जब उनकी किताबों का तर्जुमा हुआ तो उसके बाद फिर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम विल फाइंडिंग अ जनरेशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फिलोसोफर्स, एंड द फर्स्ट जनरेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मुअतज़िला। मुअतज़िला की जो तहरीक है, मुअतज़िला की जो थॉट है, इट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशंस फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज।
translations of the books of mantiq and falsafa, logic and philosophy. So they came into existence. They simply evolved in the backdrop of under the factors related to the Greek culture, the Greek translation, of course. And the same thing could be said about the Indian culture. उस ज़माने में जो संस्कृत से जो किताबें तर्जुमा की गई, तिब से मुतल्लिक़ थी, लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर है दूसरे भी उसमें जैसे बुद्ध की ज़िंदगी उसका तर्जुमा किया गया। ओके, तो फिर इनके बड़े असरात पड़े, तो बहुत सी, इसीलिए मैंने कहा था ना, इस आप उसको याद कीजिए कि ये जो जैसे मैंने कहा था कि अल-मिलल व निहाल शहरिस्तानी की, यानी इस्लामी तारीख में अदियान की जो तारीखें लिखी गई हैं, तो उनमें उनका जब हम मुताला करते हैं तो पाते हैं कि उनमें ये जो हिंदुस्तानी किताबों का जब तर्जमा किया गया तो उससे किन किन फ़िरक़ों ने असर ज़्यादा कबूल किया, किन फ़िरक़ों में इसके असरात पाए जाते हैं। सो विल बी फाइंडिंग दैट whenever there is translation, it impacts the receiving culture. Just take the example of the modern translations. If something is translated from English into Urdu, for example, you'll be having so many impacts, so many facets of impact. नए अल्फाज आते, you'll be having new vocabulary, you'll be having new stylistics, new semantics, you'll be having new paradigms, new theories, literary theories of say modern poetry, that is the free verse को ले लीजिए, it is because of the modern parallelisms. So translation stands for open culture, understanding the other. दूसरे इंसान को समझना है, ये ट्रांसलेशन क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे को समझ रहे हैं, और जब हम दूसरे को समझते हैं तो फिर क्या होता है, उससे मुतासिर होते हैं, किसी न किसी सतह पे हम मुतासिर होते हैं। And this is to be seen in all the phases of history, whether it is past or present or the future history of the humankind. Well, I think with this we should be concluding this session. Thank you very much. Let's meet next time in the, I think, the 5th interactive session with the new questions, new observations, so that we come out from this scene with more with a vision, with more clarity in vision, more clarity in perception, with an eagerness to understand our history. Thank you very much. आमिर साहब, अब आप इसको जो है वाइंड अप कर दीजिए।